My second live session, so I would like to introduce astrology a little bit to you all. Hello Banani, how are you? Hello Dheeraj, how are you? As I was saying, I want to introduce a little astrology to you all who are really interested in astrology and who really want to study about it. I'm gonna show some books to you today. Hello Om Prakash, hello Vimal, how are you guys? So I'm gonna show some books tonight as the basic of astrology, from where astrology begin. Hello Mega. So this is the first part of that book, Brihat Parashar Hora Shastra, part 1. This is called like Gita of astrology. Hello Anshi, hello Keshav, how are you? So what do you guys really think about astrology? Vimal Vidrohi, 7th and 3rd Lord combination in your chart. And that's why this happened. 7th and 3rd Lord must be in 12th house. That is why this happened. Along with Ketu or some separative planet in 7th house or 12th house. एंड अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉल मी राइट नाउ. I can tell you, or I will try to tell you what are the combinations in the chart because of what it happened. Hello Rashi, how are you? Hello Amsavali, how are you? Today I came here with a thought that I should tell something about astrology today. As I showed you the book, that this is the Gita of astrology, the beginners and the ends of astrology is here. Brihat Parashar Hora Shastra, this is the book. You all should read it. It's in 2 chapters, chapter 1 and chapter 2. You should all read it if you are an astrology enthusiast. These books give you clarity in life. These books give you clarity in life, and where you are not focused in life and where your inner sense wants you to go. Hello Purvi. How are you Purvi? Hello Deepika. Hello Banani. If you have any specific questions, you can call me right now. I'll answer you live here. I just wanted to share some sutras of astrology today. One of that is Jupiter transiting through 8 points of Ashtak. You guys must not be knowing about Ashtak. If you are a new person in astrology, you can always go in your app, whatever app you are using, and there is a section called Ashtak. When you click on that, it will show you points of every planet in every house. And if Jupiter is having 8 points in any of the houses, you can
check the transit of Jupiter from that particular house, and in that particular house you if you are in the age of acquiring that thing, and if you are not in the age of acquiring that thing, then your father must have acquired a vehicle or a property or expanded the current property. Hello Bilu, hello Mangesh, how are you? If you guys have any specific question, you can ask me. विमल जी, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड यू, मैंने आपको ऑलरेडी आंसर दे दिया है. अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. हेलो सुनैना, हेलो कमलेश, हाउ आर यू? हेलो लव, हेलो आरवी. So today I just wanted to share some knowledge with you all. Like I have shared about that Ashtakvarg Sutra with you all. That whenever Ashtakvarg Jupiter transits on 8 points of Ashtakvarg in natal chart, because some of the people are only having, not everybody will be having that. So they will get vehicle or a property or expansion in property in that year, definitely. Hello Isha. So if I begin with the current scenario of the planets, like let's take an example of Leo Lagna, Singh Lagna. Hello Sadbidi, hello Gautam, hello Deepika, hello Yudhishthir. Like if you take about Singh Lagan or Leo Lagan, what is the one thing they all will get? As Saturn is transiting in their 7th house, so the one thing which they all will get is either they will buy a property or they will buy a vehicle. How come that? Saturn is traveling in 7th from ascendant and aspecting from 10th aspect to the 4th house. So 7th and 4th are connected. 9th is connected from the 3rd aspect, the house of Bhagya. 7th is connected with Lagna, which means like connecting to yourself. And 10th aspect on the 4th house, that is Sukh Bhav, property, vehicles and your home. So all Leo Lagna people or Singh Rashi people will get a chance to buy property, vehicle or expand in property, current property in these 2 years. And 90%, or I can say that at least 80% of the people have already bought that. Pavani ji, you can call me here and I'll just check your chart, because I have a lot of people to tell. Hello Monica. If you guys have any questions regarding astrology, you can ask me. Hello Sanjeet. आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको अभी चार्ट देख के बता सकता हूँ. जितना आपने लिखा है मैं उससे समझ सकता हूँ कि नवमांश में आपके
पति का गारंटीड मरकरी या सैटर्न नवांश के लग्न में होगा, और कोई ना कोई ऐसा ग्रह जो शादी को सपोर्ट नहीं करता वो 7th हाउस में होगा या तो 8th हाउस में होगा. दैट इज वेरी क्लियर. हेलो विकास, हेलो भास्कर, हेलो मिताली. तो आप जितना आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं. मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा, यहीं पे अभी बताऊंगा, ऑन लाइव सेशन बताऊंगा. हेलो दीपिका, हाउ आर यू? दीपिका, आई एम नॉट टॉकिंग particularly about you, but I don't know how you felt. So hello शिवानी, आई एम गुड. आप कैसे हो? हेलो प्रविता. दो 2002, आप 2002 की हैं. 2002 में सैटर्न वॉज इन. आपका पूरा चार्ट स्टडी करना पड़ेगा, बट ओवरऑल जो मेरे को लगता है 2002, अभी आप 21 की हो रही हैं, 20 कंप्लीट किया, 21 रनिंग है आपका. सो अभी आपकी एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग पेंडिंग है जो कि आपकी होने वाली है. जी शिवानी जी, आप ही को बता रहा था. जी शिवानी जी, आप ही को बता रहा था. हेलो टेक ब्रो, हाउ आर यू? हाय नेहा, हाउ आर यू? Okay, let's. I just wanted to ask you one thing. I'll share a technique with you. How many of you people are having Saturn transit over natal Ketu? I know that 90% of you might not be knowing about it, but I'm just asking you. Yeah, Preeti, you can ask me. I'm just asking you कि how many of you know exactly Saturn transiting over your natal Ketu in your chart? जी प्रीति जी, '99 born. जी प्रीति जी, you are 99 born. Good. Preeti ji, what is your birth year? What is your birth year? 99. जी, you will clear the exams. थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं. You will clear the exams, no doubt. Good luck to you. Hello Neha, hi Vinita, hi Shivani. Hello Divyanshu.
जी शिवानी जी बताइए, क्या हेल्प कर सकता हूं मैं आपकी? जी प्रीति जी। 2002। जी लड़का कैसा होगा ये तो देखने के लिए मुझे पूरा चार्ट ही स्टडी करना पड़ेगा, और मैरिड लाइफ को भी चेक करने के लिए पूरा चार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चाहिए तो मेरे को कॉल कर सकते हैं अभी आप। मैं जितना हो सकता है उतना लाइव चैट्स पे बताने की कोशिश करता हूँ अपनी एंड पे, बट हमारी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एज अ स्टडी। तो हम भी जितना बता सकते हैं उतना ही बता सकते हैं। कोमलप्रीत कौर जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। 2006 यूअर्स, ओके गुड। हेलो विनीता जी। ऐसा बताएं जिसके लिए चार्ट ना खोलना पड़े। ओके। 2000 1999 की कह रही हैं आप? चलिए 1999 को देखते हैं, ग्रह की पोजीशंस क्या थी। हम्म, 1999 में पैदा होने वाले लोगों के लिए ना, ये प्लस पॉइंट भी है एक माइनस पॉइंट भी है। राहु जो था वो कैंसर राशि में था। एक तो क्या है ना कि इट्स अ रॉयल साइन। कैंसर इज अ रॉयल साइन, लियो इज अ रॉयल साइन। दो रॉयल साइन होते हैं कुंडली के अंदर हमारे। अगर उसमें कोई भी वक्री ग्रह बैठ गया तो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होना तय है। वेन एवर देयर दशाज रन, जब भी उनकी दशा चलेगी वो प्रॉपर्टी में लाइफ में डिस्प्यूट दे देंगे। तो आपको एक तो बहुत ही केयरफुल रहना है प्रॉपर्टी के मैटर को लेके। दूसरा, कैंसर में राहु, ऐसे लोगों को ना पैसा बहुत आसानी से मिलता है। वो किसी से भी मांग लें पैसा, कहीं से भी पैसा का इंतजाम कर सकते हैं, पर ये उनके लिए हानिकारक होता है। उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा। क्यों? क्योंकि राहु जो है ना वो इल्यूजन क्रिएट करता है लाइफ में। वो आपको एक भ्रम में डालता है कि आप कैसे भी करके पैसा इंतजाम कर लेंगे, और आप सोचेंगे भी ये अपने अंदर से कि हम इस पैसे को वापस करेंगे, पर वो आपका भ्रम होगा कि आप वापस कर पाएंगे। आप वापस कर नहीं पाएंगे, आप उस जाल में फंस जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं, बृहस्पति मेष में था, वक्री था, शनि नीच का था। ऐसे लोग ना बड़े फिट होते हैं, मतलब इनके साथ ना डुअलिटी चलती है। या तो ये बहुत ही फिट होंगे या तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति वक्री है, वो फिट करेगा। शनि जिसे कहते हैं कि हम विस्तार का कारक है, तो वो विस्तार कर देगा शरीर का। हेलो रक्षित, हेलो अशोक। हेलो राजू। जी रक्षित, प्लीज पूछिए क्वेश्चन। हेलो राकेश, हेलो इश्ता, हेलो परम, हाय गणेश, हेलो सिमरनजीत। 95 बॉर्न, मर्चेंट नेवी। ओके। 12/9 सितंबर।
आपके चार्ट में सर सबसे पहले तो सैटर्न इज इन अ गुड पोजीशन, इन वक्री है और ऊपर से एक्वेरियस में बैठा है। राहु मंगल की पोजीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, विच इज अ लिटिल कंसर्न विद योर मैरिड लाइफ, बिकॉज ये अंगारक दोष बना रहे हैं आपके लिब्रा साइन के अंदर। जुपिटर इज गुड इन एक्वेरियस, ओ स्कॉर्पियो, सॉरी। स्कॉर्पियो का जुपिटर जो होता है ना, आपको ऑकल्ट या एस्ट्रोलॉजी जैसी साइंसेस में इंटरेस्ट देता है, क्रिएट कराता है। बट दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट दशाज यू आर प्लेइंग। आई एम नॉट सीइंग द दशाज राइट नाउ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरलुक अबाउट इट, अबाउट द चार्ट। मून केतु साथ में है तो मदर के साथ कोई इशू होगा आपको, या तो मदर आपसे अलग होंगी या आप मदर से दूर रह रहे होंगे। सन इन लियो है आपका, तो फादर एक रेप्यूटेड पोजीशन पे जरूर होंगे लाइफ के अंदर, और ईगो आपके अंदर काफी होगा। हेलो वाओ लाइफ, हाउ आर यू? हेलो संजीता, हेलो राहुल, हेलो शेफाली। हेलो रक्षित, वॉज इट ट्रू? थैंक यू। हाय मेगा, हेलो ऋतु। चलिए, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग मोर अबाउट द करंट ट्रांजिट्स। जैसे कि मैंने लियो लग्न और लियो राशि के लिए बताया अभी, ऐसे ही मैं उन लोगों के लिए बताता हूं जो जुपिटर की महादशा से गुजर रहे हैं पिछले 5-7 साल से, इन अ रफ पीरियड 5 से 7 साल से जो लोग जुपिटर महादशा में चल रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ बताता हूं आज। दिस इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जुपिटर पिछले 4 साल से पीड़ित चल रहा है हर किसी की कुंडली में, बिकॉज इट इज इन एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न और कंजंक्शन और इन पापकर्तरी विद सैटर्न। तो सैटर्न का प्रभाव जुपिटर के ऊपर से जा नहीं रहा है, जबकि जुपिटर एक ऐसी महादशा या ग्रह है जो कि सबसे शुभ प्लैनेट है हमारे सारे के सारे ग्रहों के बीच में। उससे शुभ प्लैनेट कोई है ही नहीं। वो बुरा भी करता है ना तो कुछ अच्छा ही दे के बुरा करता है। हेलो आकांक्षा, हेलो दीपक टाइगर, हेलो अंजिता, हेलो रचना। सो जब जुपिटर जैसा ग्रह फंस जाता है, सैटर्न जो कि एक रिस्ट्रिक्शंस का कारक है, जो कि एक लिमिटेशंस का कारक है, और जुपिटर उसके अदर हैंड एक्सपेंशन का कारक है। तो जुपिटर जो है ना, अपनी ट्रू कैपेबिलिटी पे वर्क नहीं कर पाता है जो सैटर्न के एस्पेक्ट में आने के बाद, क्योंकि सैटर्न उसे रोक देता है कि भाई अभी तो नहीं कर सकते, इस साल तो नहीं करने दूंगा मैं आपको इस जातक को या इस नेटिव को रिस्ट्रिक्ट करके रखना है, सो दैट ही लर्न्स फ्रॉम लाइफ। तो अभी फिलहाल 2020 से लेके 2024 मई तक जितने भी लोग जुपिटर महादशा में चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन या प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे फिलहाल। और जुपिटर में चलने वाले लोगों के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा उपाय बताता हूं। आप अगर नॉनवेज खाते हैं और ड्रिंक करते हैं तो काइंडली लीव दैट, क्योंकि जुपिटर एक बड़ा ही सात्विक ग्रह है। जुपिटर को नॉनवेज से कोई लेना देना नहीं, ड्रिंक्स से कोई लेना देना नहीं, और अगर आप स्मोक करते हैं तो आप उल्टा जुपिटर को और कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि आप राहु को मजबूत कर रहे हैं। राहु जो है ना, वो एक धुआं है, और अगर आप स्मोक कर रहे हैं ना, तो स्मोक का असर कहां होता है हमारी लाइफ में? आप स्मोक मुंह से करते हैं, असर उसका ब्रेन पे होता है, दैट इज योर लगन। तो जब भी आप स्मोक कर रहे हैं तो आप राहु को स्ट्रांग कर रहे हैं अपनी कुंडली में। तो जहां भी राहु होगा ना, वो स्ट्रांग हो रहा है, और राहु इज लाइक अगर वो पॉजिटिव है आपकी कुंडली के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर वो हल्का सा भी नेगेटिव हो गया
तो बड़ी ही कंफ्यूजन दे देगा आपको लाइफ में। सो अगर आप जुपिटर की महादशा में हैं तो आप ये इन 3 चीजों से 3 महीने के लिए परहेज कर लीजिए। आई गारंटी यू आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि जुपिटर कैसे सही हुआ। और अगर आपने नहीं किया तो देखिए जुपिटर खराब हो जाएगा, फिर फाइनेंसेस में इशू, फैमिली लाइफ में इशू, आपकी मैरिड लाइफ में इशू, और आपका धर्म पे से भरोसा उठ जाना। क्योंकि जुपिटर जो है ना 2, 5, 7, 11, 9, 11 का कारक है। सेकेंड हाउस इज योर फाइनेंस, 5th इज योर चाइल्ड एंड लव, 7th इज योर मैरिज, 9th इज योर धर्म, फादर, 11th इज योर गेम्स। तो अगर जुपिटर खराब हुआ ना कुंडली के अंदर तो ये सारे घर खराब हो जाएंगे आपके एक साथ। तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है या हम इतना फंस क्यों हो रहे हैं। तो उसका वजह यह है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है आपकी, आपको उस ग्रह के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जो इंसान राहु की महादशा के बाद गुरु की महादशा या जुपिटर की महादशा में आया है, उसे आदत तो राहु की है। राहु को ड्रिंक्स भी पसंद है, आप जितनी ड्रिंक करोगे राहु उतनी तरक्की देगा, आप जितना नॉनवेज खाओगे उतनी तरक्की देगा, आप जितना स्मोक करोगे उतना बढ़िया करेगा वो आपके लिए। लेकिन जैसे ही आप जुपिटर में एंटर करोगे, यही सारी चीजें आपको नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देंगी लाइफ में। हेलो अजय, हेलो मनोज, हेलो सुरेंद्र। सो इट्स अ जेन्युइन एडवाइस टू एवरीवन हु इज रनिंग थ्रू जुपिटर महादशा कि आप ड्रिंक्स, नॉनवेज एंड स्मोक अगर आप हो सके तो 3 महीने के लिए थोड़ा सा इनसे दूर रहिए एंड यू सी द डिफरेंस व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। हेलो ऐश्वर्या, हेलो पल्लवी, हेलो सौरभ। आसमा, आपकी सेकंड मैरिज देखने के लिए आई नीड टू चेक योर चार्ट। यू कैन कॉल मी राइट नाउ, आई विल जस्ट चेक इट ऑनलाइन। Asma, I can understand your point, but it's not possible for me to check every chart here right now. If you call me, I will surely dedicate my time to you. Hello Yash, hello Roshi, hello Sonia, hello Kavita. Yeah, sure, Asma, you can call me. Hello Rahul, hello Arvind. मुकेश जी दोबारा बताइएगा आंसर, क्योंकि वो चैट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, तो माइट बी कि मैं मिस कर गया हूँ आपका क्वेश्चन। प्लीज एक बार दोबारा पूछ लीजिए। हेलो प्रियंका, हाउ आर यू? एनी क्वेश्चंस प्रियंका? डॉक्टर इरशाद, हेलो इरशाद, हेलो मिनबो, हेलो मोनू। ओके चलो, let me tell you some characteristics about some people in your life। अगर आप किसी को भी ऐसा देखते हैं जिसकी आईब्रोज हैवी हैं, उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली फिट मिलेगी आपको। रीजन इज, जिनकी भी आईब्रोज हैवी होंगी वो इधर एरीज लग्न होंगे या स्कॉर्पियो लग्न होंगे। एरीज असेंडेंट और स्कॉर्पियो असेंडेंट होंगे। और एरीज और स्कॉर्पियो असेंडेंट की जो क्वालिटी है दैट इज ऑफ मार्स। मार्स इज अ फिट प्लैनेट। तो भले ही उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं ड्यू टू देयर पर्सनल चार्ट, बट उनकी बॉडी या फिजिकल स्ट्रक्चर जो होगा ना बड़ा ही परफेक्ट मिलने वाला आपको। मस्कुलर बॉडी मिलेगी, शॉर्ट हाइट मिलेगी। हाइट बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती उनकी, 5'7",
6, किसी किसी केस में इन एक्सेप्शन वी गो तो 511 तक भी जा सकती है. एंड दे आर वेरी गुड इन स्पोर्ट्स. हेलो जोई. हाय प्रज्ञा. हाय राजन. हेलो मुकेश. मुकेश जी अपनी चार्ट को कॉल कर लीजिए, बता देता हूँ. हेलो तनु. हेलो समीक्षा. समीक्षा, व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस्ड? काइंडली टेल. हेलो प्रखर. हेलो राशि. हेलो तनु. Hello Samiksha. Samiksha, I asked you, what did you felt? Kindly share with all of us. Hello Raj. Hi Ritika. Hi Kirti. Hi Shiny. Good name. Hi Priya. Hi Kirti. How are you? Hi Vikram. सर आप मेडिकल सेक्टर से हैं सीतत्र स्वयं जी. आप मेडिकल सेक्टर से सर ऑलरेडी 6th हाउस से कनेक्टेड हैं. आप तो 6th और 8th से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं. आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी. उसके लिए मुझे पूरा चार्ट चेकआउट करना पड़ेगा. कीर्ति, आई कैनॉट टेल योर कैरियर जस्ट बाय योर नेम. How? Okay, Samiksha. Good. So you have 2 male friends, heavy eyebrow and good body. गुस्सा भी उन्हें बहुत अच्छा आता होगा. गुस्सा भी बहुत तेज होगा उनका, दोनों का. That is natural traits of Mars, basically. Hi Mukesh. Hello Saman. Hi Yash. Hello Popatlal. Hello Preeti. Kirti, you can call me with your details. I'll explain everything to you right now. Or you can just tell me any of your planets placement. आप मुझे कोई भी planet की अपने placement बता दो कि किस राशि में है और किस घर में है. I'll explain it to you right now. Hello Ritika. Leo straight, super confident, always bossy. They like to rule. They don't take orders, they give orders. It's a royal sign basically. Hello Garima. How are you? Hi Mahima. Hello SP. Muthmore ji. Garima, I can give you what you are asking, but for that you need to call me right now. So I'll give you, or you can call me later on, so that I can start that chat or call, whatever you like. Hello Diksha. Hi Khushi. Okay, fine. Let me try to. Okay, how many of you are Virgo Rashi? Let's take a catch on that. How many of you are Virgo Rashi? For Virgo Rashi, I want to tell something. From 2020 to 2022 end, they have faced a lot of issues in their life. And the reason, whatever Mahadasha they are going on, doesn't matter. But they have faced a lot of restrictions and issues and problems in their life.
every chart will have their own kind of issues and problems, but on a bigger scale, everybody was having it. And the issue was, thank you, Swain, Stita Parjana, Swain sir, thank you. Sir, it's all guidance from here, and I am just the delivery boy to deliver it. So I was saying that they all have faced it. The reason behind that is Saturn was transiting 5th from Moon. Saturn transiting 5th from Moon is like in North India, basically astrologers don't believe that, because they generally take Dahyas, which is 4th from Moon, 8th from Moon, and Sadesati. But in South India, 5th Saturn is very much dreaded, more than Sadesati and Dahyas. So every Virgo or Kanya Rashi people, Virgo Rashi or Kanya Rashi people must have felt the issues in their life from 2020 to 2022. Heartbreaking issues, family issues, property issues, and career issues most probably, because Saturn is natural karak of career. It's because of the Kalpurush Kundli, Saturn rules the 10th house of the karma. So it's the कर्म कारक शनि. So कर्म में प्रॉब्लम आएगी आपको, कन्या राशि वालों के लिए. Hi Ashni, how are you? Hi Deepika. 95. Okay, you are 28. Yashni, itna I just skipped your birth date. Can you just message me again or message in the chat again so that I can just check out the birth date? Hi Surya, 25th. Okay, 25th. 7. So Yashni, you must be having relationship issues. Either your relationship will be very good or very bad. Deepika 11. You are very money minded, Deepika. Either you love money or you hate money. Kirti 6. You are like born to be competitive. Ritu, you are having issues in your married life. Because you are like what I can say about you, because you are spiritual. You like to take things in a systematic order, and the rest I can only tell after seeing your chart. But you are a spiritual guy. Shefali, 1 May, okay, you are the bossy man. You are the boss. Hi Kumar, hi Priya, hi Kanak. Hello Astro King, how are you? Yeah, kindly share some knowledge with us, Astro King. Hi Ragni, hi Rashmi. Shefali, what's your date of birth? Hi Ritu, hi Nayana. Hi Shivani. Hi Gudu. Gudu, you must be having a prominent Mercury. कितनी भी उम्र हो जाए आप छोटे ही दिखोगे हमेशा. Tejaswani, you are having a prominent sun in your chart. So prominent sun means that you have that confidence in you. You like to give orders. You don't take orders easily.
हेलो शिवानी, हाय। थैंक यू तेजस्वनी। I'm so glad that you guys are responding to me because it's just my second session, second live session. So I'm so glad about it that you guys are even responding to my answers. Hi Nisha, hi Veer. I am good. See, your name is Tejaswini. Tej. It's a son's name. You like to travel a lot. अगर आपको रिस्ट्रिक्शन ना हो ना घर आने की, तो माइट भी आप ड्यू टू एनी अदर रीजन यू विल ऑलवेज बी आउट ऑफ होम। क्योंकि सन जिसका अच्छा होता है ना, दे आर फिल्ड विद प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा इज लाइक एनर्जी इन देम। वो कभी जल्दी बीमार नहीं पड़ते वो लोग। Okay, Tejaswini, yes, I like to travel. Thank you. Hello, Sonal. Hi, Vikas. Anju. 10th. April 31 मैडम, आप म्यूजिक में करियर सोच रही हैं, मुझे तो प्रॉपर्टी में करियर दिखता है आपका। यू आर बॉर्न विद दैट थिंग। यू आर अ 4 नंबर। यू आर बॉर्न टू हैव प्रॉपर्टीज इन योर लाइफ। और आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉपर्टी का मैटर जरूर चल रहा होगा आज भी। मैडम डिवोर्स 31 आप भी हैं, 4 नंबर आप भी हैं, तो 4 नंबर और आपका डिवोर्स हो चुका है, तो दैट मीन्स राहु समवेयर पीड़ित। राहु का प्रॉब्लम चल रहा है आपको। आपको एक बार चार्ट शो करना पड़ेगा पूरा, तभी मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा। इट्स नॉट जस्ट लाइक गिविंग अ रैंडम प्रेडिक्शन राइट नाउ। उससे मैं भी परहेज करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं गलत हुआ लाइव सेशन में तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोग मुझे कैसे फॉलो करेंगे फिर। मैडम, आप 10 साल से म्यूजिक सीख रही हैं, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप जो सीख रही हैं ना, आप एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप 31 को बॉर्न हुई है, 4 नंबर है आपका, राहु उसका कारक है, आप एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टीज में चली जाएंगी। चाहे आप वो म्यूजिक से अर्न करके जाएं या किसी और से, उसके लिए मुझे पूरा चार्ट चेक करना पड़ेगा। बट ऑन अ शॉर्टर नोट मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप जाओगे जरूर प्रॉपर्टीज के अंदर। आपको 8th हाउस का राहु मिथुन राशि में है। आपको ना एस्ट्रोलॉजी या जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, ऑकल्ट में, आपको वो सीखना चाहिए। उससे थोड़ा सा शांति मिलेगी राहु को। हेलो कंचन। हेलो विकास। विकास जी, एक बार आप अपना थोड़ा डेट ऑफ बर्थ वगैरह दोबारा भेजिए, वो स्क्रॉल आउट हो गया है। सीए के लिए थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना, मतलब अभी मैं विदाउट चार्ट तो प्रिडिक्शन नहीं देना चाहूंगा अभी।
क्योंकि क्या है ना कि एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए प्रेडिक्शन देना एक अलग बात होती है, और एक आपके नाम का जो ऑरा होता है और एक आपका डेट ऑफ बर्थ का जो ऑरा होता है वो तो मैं रीड आउट कर सकता हूँ, बट अगर आप पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ कैरियर के बारे में बात करोगे मेरे से, तो उसके लिए आई नीड टू चेक योर कंप्लीट चार्ट. डोंट वरी, आई वोंट टेक अ लॉन्ग टाइम इन दैट. नहीं नहीं, 4 नंबर वालों को बहुत अच्छा म्यूजिक में कैरियर होता है. वीनस वीनस इज कारक ऑफ म्यूजिक, और वीनस दिग्बली होता है 4 नंबर में जाके. ऐसा नहीं है कुछ भी. और 4 नंबर में जिनका वीनस होता है ना, उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद होती है. शाहरुख खान का है वो रात को सोते भी है ना, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एफ्लिक्शंस ऑफ वीनस, वो सोएंगे भी ना तो प्रेस किए हुए नाइट सूट्स पहन के सोएंगे. इतना साफ सफाई का ख्याल रखते हैं वो लोग. 4th हाउस वीनस. तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि 4th नंबर वाले म्यूजिक में नहीं जा सकते. मतलब आई नो समबडी जो 4 नंबर है एंड ही इज अ म्यूजिशियन, ही वांट्स टू बी अ कंपोजर इन फ्यूचर. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो बेसिकली पर्टिकुलर चार्ट पे डिपेंड करता है, बट द जिस्ट ऑफ दैट चार्ट इज कि एट द एंड ऑफ द डे चार्ट भी आपको प्रॉपर्टीज में लेके जाइएगा, हर हालत लेके जाएगा वो आपको. आप काम कर्म जो भी करें, डेस्टिनेशन कोई और है आपकी. वो कर्म सिर्फ उस डेस्टिनेशन में पहुंचने का जरिया होगा आपका. हेलो मिंटू, हाय अंजलि, हेलो सोनी. Okay, guys, I have 5 minutes left with my live chat, second live chat today. So, if any one of you have any questions or you want to talk to me right now, you can call me, because after that I will be online tomorrow only. नीलूफर जी, आप का केस जो है ना 5/12/2007 का है, तो आप तो अभी 16 साल की हैं. सो देर इज टाइम विद यू. अभी इतनी जल्दी मत कीजिए. हमारी ज्योतिष विद्या जो है वो ये कहती है कि 18 साल से पहले तो देखना ही नहीं चाहिए किसी का. विकास जी, यू कैन ज्वाइन माई वेट लिस्ट राइट नाउ. मैं सेशन 5 मिनट में क्लोज करके और मैं कॉल्स पे आ रहा हूं. ऋतु जी, जयदीप की फीलिंग आपके लिए कैसी होगी? चार्ट दिखाइए प्लीज. बिल्कुल बताऊंगा. वैसे मैं एक जनरल बात शेयर करना चाहूंगा, अभी 4 मिनट बचे हैं मेरे, कि जैसा कि हम लोग ना आजकल मैं बहुत देखता हूं कि बहुत से लोग रिलेशनशिप्स को लेके आते हैं हमारे पास, कि हमारा रिलेशनशिप चलेगा कि नहीं चलेगा, ये मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, ये मेरी शादी होगी कि नहीं होगी. तो देखिए, इन चीजों में ना बहुत सी चीजें मैटर करती हैं. आपकी क्या दशा चल रही है. अगर आपकी सिर्फ लव या रिलेशनशिप की दशा चल रही है तो वो लव में ही कन्वर्ट होकर रह जाएगा, बस वो शादी में कन्वर्ट नहीं होने वाला. लेकिन अगर आपकी मैरिज के साथ, लव के साथ, रिलेशनशिप के साथ मैरिज की दशा आने वाली है, नेक्स्ट दशा आपकी मैरिज की आ रही है, तो हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, आप शादी कर लोगे, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है सामने हमें. तो कई बार क्या होता है ना, बहुत से लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि रिलेशनशिप में बहुत परेशान होते हैं कि नहीं हम कैसे करेंगे. तो मेरा उन सबसे यही कहना है कि आप परेशान ना हो, आप चार्ट चेक कराएं एक बार. अगर तो दशा दिख गई हमें, तो हम बिल्कुल क्लियरली बता देंगे आपको कि वो कन्वर्ट हो रही है मैरिज में कि नहीं हो रही है. बहुत से लोगों के चार्ट में क्या होता है ना, मल्टीपल रिलेशनशिप के योग होते हैं. अब उनमें से पता चलता है कि वो चाहते तो किसी एक को हैं, योग लेके बैठे मल्टीपल. तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मल्टीपल योग अपना काम तो करेगा ही करेगा.
तो ब्रेक इन रिलेशनशिप देता रहेगा, क्योंकि उसे तो मल्टीपल करने हैं ना, उसे एक से तो काम नहीं करना कोई। तो ऐसे केसेस में भी आपको सब्र रखने की जरूरत है। यू डोंट नीड टू बी लाइक फोकस्ड कि भाई मैं ये चाहता हूं, मेरे को मिलना ही चाहिए, क्योंकि इसके भी लक्षण दिखते हैं चार्ट के अंदर। वक्री प्लैनेट आपका 5 और 9 में बैठा हो या 1 में बैठा हो, दैट पर्सन इज स्टबर्न पर्सन, वो पीछे हटेगा ही नहीं बिल्कुल भी। हेलो प्रियदर्शनी, हेलो रजत। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से टू ऑल यू गाइज कि आप लोग रिलेशनशिप्स के मामले में ना थोड़ा सा सजगता बरतिए, क्योंकि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है